فرینڈ جی ایس کیو ڈیجیٹل اسکول جا رہا ہے اپنے نئے مہمان کے ساتھ لائیو. ہمارے ساتھ جوائن رہیں. السلام علیکم، میں ہوں نادیہ شکیل اور میرا تعلق روشنیوں کے شہر کراچی سے ہے اور میں جی ایس کیو ڈیجیٹل اسکول کے انٹرویو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں. اور میرا مقصد ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں، انہیں سکھا سکوں یا کم سے کم اتنا بتا سکوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکیں. اسی مقصد کے حصول کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سنجے کمار، اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے، حیدرآباد سے ہیں، اور یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، سوشل ایکٹیو ہیں، فاؤنڈر ہیں ویبس آف کائنڈنس اور انٹرویور ہیں. تو بلا تاخیر اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے انہی کے بارے میں. سب سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے شو پر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں بھی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس لائیو شو پہ آؤں اور آپ کے آڈینس سے مدعو ہوں، اپنے ویوز اپنے خیالات شیئر کروں. تو بہت بہت شکریہ. بہترین سر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے. جی، جیسے آپ نے بتا دیا کہ میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں، پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے MBBS کی ہے 2012 میں. اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے سائیکیٹری میں. تو میری فیلڈ آف انٹرسٹ سائیکیٹری ہے، ماہر امراض نفسیات. پیشنٹ کے لیے میں لائیو شو کرتا ہوں، انٹرویوز کرتا ہوں. ایک پلیٹ فارم ہے ویز آف کائنڈنس، تو اس کا میں کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ہم نے کریٹ کیا تھا. میں اس کا فاؤنڈر اور CEO ہوں. اس پلیٹ فارم کا مقصد سمپل ہے کہ انفیکٹ دی ورلڈ وتھ لو پیس اینڈ کائنڈ ہے. یہ ہے میرا سا ادنا سا ننا سا انٹروڈکشن فیکٹری. ماشاء اللہ سے سر آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، زبردست. میں آپ سے اور بھی کچھ کوشچن کرنا چاہوں گی سر. میں یہ چاہوں گی کہ یہ جاننا چاہوں گی کہ فرسٹ جب آپ بچپن میں تھے تو کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ کیا سائیکیٹرسٹ ہی بننا چاہتے تھے یا کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ سائیکاٹرسٹ تو بات کی بات ہے، بچپن میں یہی تھا ڈاکٹر بننا ہے، تو وہی ڈریم دیکھ کے MBBS کیا. پوسٹ گریجویشن وہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے لائف کے سرکمٹینسز کس طرح سے آپ کو لے کے جاتی ہے اور کہاں لے کے جاتی ہے. تو میں نے پوسٹ گریجویشن جو کی ہے وہ اپنے لائف کے حالات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب آپ کی کمزوری آپ کی طاقت بن جائے، تو آئی تھنک میں خود جب اس فیز سے گزر رہا تھا اس وقت میں اس فیلڈ میں ان ہوا. تو اب یہی فیلڈ جب میں اس فیلڈ میں آیا، تب جب لوگوں کے قصے، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں سے روبرو ہوا، ان کے جب مسائل دیکھے، تو مجھے لگا شاید میرے مسائل بہت چھوٹے اور شاید میں اسی فیلڈ کے لیے بنا تھا. تو میری کہتے ہیں کہ میری کمزوری میری طاقت بن گئی. اور لاسٹ 4.5 ایئر سے میں پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ کی. آن لائن سیشن بھی لیتا ہوں، آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی اویلیبل ہے. اسی موضوع پہ جیسے میں نے آپ سے تھوڑا سا ڈسکشن کیا تھا، کیونکہ یہ سپتمبر کا جو مہینہ ہے نا، 10th of September ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے ہے. تو میں جیسے آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے مدعو کیا تو مجھے لگا کہ اس پہ جو ہے نا بات ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مطلب سوسائڈ آج کے دن میں، آج کے ماحول کے حساب سے ابھرتا ہوا
इशू है। एक स्टेटिक्स WHO के स्टेटिक्स के मुताबिक हर 40 सेकंड में दुनिया में एक बंदा खुदकशी करता है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की स्टेटिक्स देखें तो 1 लाख बंदों में 3 बंदे खुदकशी करते हैं। अब आप बोलोगे हमारा जो स्टेटिक्स है बकुल दुनिया के बहुत कम है। उसके भी कई वजूहत हैं। हमारे यहाँ पे सोशल प्रेशर बहुत होता है। अगर किसी ने बोल दिया किसी ने कि फलाने बंदे ने खुदकशी कर ली है, तो वो तो गया, मर गया बेचारा, उसकी फैमिली को सफर करना पड़ता है। और सेकंडली अगर वो बाय चांस बच भी गया, फिर उस पे क्रिमिनल एक्ट की तरह और बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब ये है कि इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी चीजें जो है खुदकशी के केस वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। उनको कोई और वजूहत, कोई बीमारी का नाम देके जो है ना बताया जाता है। जैसे आपको पता है कि जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। मैं कह सकता हूँ लाइफ जो है ना कलेक्शन है क्या कहते हैं चैलेंजेस का। तो ये चैलेंजेस का और जो और लाइफ के सर्कमस्टेंसेस का जो कलेक्शन है, कभी अच्छे दिन, कभी चैलेंजेस, कभी हालात अच्छे तो कभी हालात बुरे। लेकिन ये है कि कभी कभार जो है इंसान लाइफ के कुछ चीजें, जैसे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, कोई फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रेस हो गया, या और मामलात जो जिंदगी में हमें स्ट्रेस कर देते हैं, तो इंसान जाता है उसे एक ही हल नजर आता है लाइफ का कि मैं खुदकशी कर लूं तो बेहतर, यही मेरा हल है और कोई हल नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू था। आज जो हैं हम नादिया सिखाने वाले के साथ जो हैं बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कर रही हैं। तो इसी मौजू पे आगे चलते जाएंगे, इससे रिलेटेड और बातें करते जाएंगे। बैक टू यू। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिरी हल जो होता है परेशानी का यही सोचते हैं कि हम खुदकुशी कर लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि मसाइल और जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, तो इसमें भी कोई बात होगी कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए कि हम किस तरीके से अपने परेशानियों पे काबू पा सकते हैं और बेहतरी कर सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो है जॉब भी कर रहे हैं, आप फील्ड में हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो किस प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं? क्योंकि अभी भी हमारे मुआशरे में ये एक बड़ा अलमिया है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत से छोटे-छोटे मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में इंटरप्ट कर रहे होते हैं, उनके हल के लिए भी आप जा सकते हैं। सर, मैं इसके बारे में भी थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी कि रेशियो जो है वो कौन से मरीज़ों का ज़्यादा है और क्या सिर्फ़ पागल लोग ही कंसल्ट करते हैं साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तवज्जो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दे दी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे मुआशरे में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि जो नफ्सियात माहिर इमराज नफ्सियात के पास सिर्फ वही जा सकते हैं जो पागल है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नींद का मसला है, आपको घबराहट है, आपको खौफ है, आपको घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको उदासी हो रही है, मायूसी हो रही है, किसी चीज में काम करने में दिल नहीं लगती है, अननोन मतलब वजह पता नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन महसूस हो रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो, तो ये इसलिए भी आप मशवरा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पागल हो तभी माहिर इमराज नफ्सियात के पास जाओ। हमारे यहाँ क्या है कि नफ्सियात के डॉक्टर्स तक पहुंचने से पहले जो है हम लोग जो है धागा करवा लेते हैं, किसी दरवेश के पास चले जाते हैं, किसी फकीर के पास चले जाते हैं,
जैसे सिजोफ्रेनिया के केसेस होते हैं तो उन्हें तो लगता है कि इनको कोई जिन्नात लग गई है XYZ, तो हम डॉक्टर से पहले उन पे भरोसा ज्यादा करते हैं, फिर वहां से केस बिगड़ के जब आखिरी स्टेज पे होता है ना, फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा भी आपके साथ पास लोग हों, वो आपके साथ ये बातें करें कि यार जिंदगी में मजा नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि जिंदगी का खात्मा ही हो जाए। मतलब अगर कोई इस टाइप की बातें करें जिसमें नाउम्मीदी हो, मायूसी हो, ठीक है, तो ये जरूर सोच लेना ही आर शी नीड कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट। अगर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट नहीं हो तो कम से कम आप उसकी बातें अच्छे से उससे बात करो, उसकी बात सुनो विदाउट जजिंग हिम, ठीक है, उससे जज ना करें, उसकी बात सुने, उसे क्रिटिसाइज ना करें, वो क्या कह रहा है उसे सुने विथ एम्पैथी एंड एम्पैथी के साथ, क्योंकि ये लाजमी है कि कभी कभार हमारे सुनने से ही अच्छे तरीके से लोग अपने अंदर की जो भड़ास है, जो उसके अंदर बात बन रही है, वो निकल जाती है। वो मतलब किसी को सुनाने से भी वो आधे से ज्यादा सुकून में आ जाते हैं। आप एक मिसाल ले लें छोटी, हम कहीं भी इबादत के लिए जाते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद फौरन ही हमें सुकून क्यों महसूस होता है? हमारे अंदर जो चीज है ना, वो हम बाहर निकाल लें, वेंट आउट कर, जो हमें अंदर चीज तकलीफ दे रही है वो हम वेंट आउट कर रहे हैं, उसके लिए मदद मांग रहे हैं। मतलब इन साइकेट्री या साइकोलॉजी वे से या साइंटिफिकली वे से हम अपनी बात को बाहर निकाले, वेंट आउट करें, वो जैसे ही वेंट आउट होती है हम लोग सुकून में आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई हमसे बात कर रहा है, अपने अंदर के अपने ख्यालात हैं, अपने जज्बात हैं, वो शेयर कर रहा है, तो हमने सुनना चाहिए। हमारे सुनने से ही उसकी आधी से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाती है। पहले के दौर में क्या होता था कि बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, छोटे छोटे मसले मिल बांट के जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करके खत्म हो जाते थे। आज का दौर ये है कि अगर एक घर में 6 फैमिली मेंबर है, हर कोई अपने मोबाइल पे है, खाने के टेबल पे, आपस में बात करने का टाइम नहीं। इसलिए जो है ना साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई है, जो बातचीत से इलाज करते हैं, साइकाट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ आप लोगों को सुनते हैं कि आपको क्या हुआ, फिर एक छोटी सी गोली लिख के देते। रही बात कौन से इमराज ज्यादा आ रहे हैं, देखें ये एक बात तो होगी कि लोगों को अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। माहिर इमराज नफ्सियात के पास पागल नहीं जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, नींद ना आना उसके लिए भी मशवरा ले सकते हो, घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए, उदासी के लिए, घर से बाहर निकलने से डर लगता है उसके लिए, डर खौफ की वजह से भी आप आ सकते हो। तो उसके अलावा जो हमारे पास ज्यादातर आते हैं ओसीडी के, एंजाइटी, डिप्रेशन तो अभी जो स्टेटिक्स है, हर 10 में से 6-7 आदमी तो जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पे डिप्रेशन में तो है ही है। सिजोफ्रेनिया के भी आते हैं, जैसे आपने कहा पागलपन के, बाइपोलर टाइप के, वो भी आते हैं। तो जो भी साइकेट्रिक इमराज हैं उनमें से अक्सरियत जो ओसीडी और डिप्रेशन के, ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब खासतौर पे ये बच्चियों में, यंग बच्चियों में और ख्वातीन में होती हैं कि वो अपनी चीजें अंदर दबा के बैठी होती है, फिर वही चीजें रिपीट, एक चीज बार बार रिपीट करना, वही चीजें एक ही एक्शन बार बार रिपीट करना, तो इस टाइप, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहते हैं। तो ये खासतौर पे वो लड़कियां या वो ख्वातीन जो अपनी चीजें बाहर निकाल नहीं पाती, तो फिर वो जो अंदर वाली चीजें वो इस शक्ल में निकलती है। और दूसरा पर्सनालिटी रिलेटेड इशू होते हैं, वो भी लोग आ जाते हैं।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर अब इसमें बॉर्डर लाइन बहुत खतरनाक होती है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। जैसे मैं सुसाइड वाले टॉपिक से वैसे ही रिलेट करूं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, तो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी जो है उसमें सेल्फ हार्म के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो खुद के लिए भी हार्मफुल होते हैं, दूसरे के लिए भी होते हैं। तो इस मौजू पे अधिक ज्यादा तफसील से जाने से बेहतर है मैं अब ओवर टू यू, आप क्वेश्चन करें तो मैं आगे फिर जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें गाइड किया, हमें बताया कि किस किस परेशानी या प्रॉब्लम्स लेकर हम जा सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी मशवरा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई ही लें, लेकिन मशवरा एक कंसल्ट करना, एक अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई ऐसा पर्सन या डॉक्टर देखें जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, उनको बता सकें और मसले का हल ले सकें। बेहतरीन। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि सुसाइड की आपने बात की, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं? और अभी जैसे एक फैक्टर मैं आपको बताऊं कि महंगाई इतनी हो गई है, लोग सोचते हैं सरवाइव किस तरह करेंगे, हम आगे कैसे चलेंगे, खाएंगे क्या, तो इससे अच्छा है मर जाए। तो और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इतना रेशियो तेजी से बढ़ रहा है सुसाइड का, इसके बारे में भी हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क फैक्टर जो जिसकी वजह से इंसान खुदकशी की तरफ मुतवज्जह हो जाता है या उसको कोई और उम्मीद नहीं नजर आती जिंदगी में, तो एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, साइकेट्रिक की जो बीमारियां होती हैं। एक तो आपने सोशल इशू बता दिया, इन्फ्लेशन, महंगाई। एक होता है फैमिली, एक होता है पर्सनल रिलेशन, और एक होता है आपके जो अगर ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ में जिसमें आप एडिक्शन पे आए गए, नशा और चीजें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर पे आते हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोन टू सुसाइड है, ज्यादा कराती हैं, जिसमें डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है। डिप्रेशन में जो है ना बहुत ही ज्यादा लोग जो है खुदकशी की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सीजोफ्रेनिया, इसको मैं थोड़ा आसान अल्फाजों में बताऊं, ये वो सीजोफ्रेनिया वाले अफराद वो होते हैं जिन्हें गेबी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें लगता है कि हमें गेबी आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब अजीब मूवमेंट्स करते हैं। आप देखते होंगे कि वो आपके सामने हवा में इशारे वगैरह करते रहते हैं। ऐसे लगता है वो किसी से बातचीत करें। जब उनसे पूछते हैं तो मेरे सामने कोई चीज है, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। कुछ चीजें फील करते हैं जो हकीकत में नहीं होती लेकिन उनको लगता है, तो सीजोफ्रेनिया ये है। तो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट भी खुदकशी के मोर प्रोन है। इसके अलावा बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें मेनिया फेज है वो भी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन, उसके बाद सीजोफ्रेनिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिप्रेशन का, तो जो मैंने पहले ही बता दिया, ना उम्मीदी होती है जिसमें उदासी होती है, मायूसी होती है, नींद का खराब होना या नींद बहुत ज्यादा होना, भूख ना लगना या भूख ज्यादा लगना, किसी चीज में लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में मजा नहीं आना, दिलचस्पी नहीं लगना, हर वक्त उदास ही रहना, ये सारी चीजें जो डिप्रेशन वाले फेज में आ जाती। उसके बाद ये दूसरा फेज आ जाता है एडिक्शन वाली, अल्कोहल एडिक्शन, जो शराब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत, उनमें हर 10 में से 7 में चांसेस हैं खुदकशी के करना, ज्यादा अल्कोहल एडिक्टेड। शराब के अलावा बाकी भी जो नशावर चीजें हैं, ओपियम है, कोकीन है, तो इनके भी चांसेस हैं कि आगे जाके ये कर सकते हैं, लेकिन मोर कॉमन अल्कोहल एडिक्शन। उसके बाद जो आ जाता है पर्सनल लाइफ में भी जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गए, अगर जॉब अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और जो है ये सारी चीजें जो है इंसान को इसकी तरफ लेके जाती है। अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी ने खुदकशी कर ली है या खुदकशी का अटेम्प्ट भी किया है, वो भी स्ट्रांग चांस है कि सुसाइड के चांसेस बढ़ा देते।
اس کے علاوہ اگر ایک بندے نے پہلی بار اٹیمپٹ کیا ہے سوسائڈ کا لیکن بچ گیا ہے, ہی از مور پرون ٹو اٹیمپ اگین. وہ دوبارہ خود کشی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک بار آلریڈی کر چکا ہے. جس کو خودکشی کے اٹیمپ نہیں کیا, خیالات آتے رہتے ہیں ہر وقت, اس میں بھی بڑا رسک ہے, اس کے بھی بڑے چانسز ہیں. وہاں میں نے سائیکیٹرک النس میں ایک چیز مس کر دی تھی, بارڈر لائن پرسنالٹی والے بندے بھی جو ہے نا وہ بھی سوسائڈ کر سکتے ہیں, ان میں زیادہ چانسز ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے بتایا سوشل اسٹیٹس پہ مہنگائی ہے, بالکل مہنگائی ہے, آپ کی جو انکم اتنی نہیں ہے, سروائیو کرنا بہت مشکل ہے, یہ اسٹرانگ سائن ہے. بندہ مایوس ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, اسے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی سوشل فیکٹرز ہیں. تو بہت ساری جو آپ ہمارے سوسائٹی میں ہے, اکنامک کرائسس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو کیا کہتے ہیں فیملی ریلیٹڈ ایشوز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ فیملی ریلیشن میں ہسبینڈ وائف کا ہی مسئلہ ہے اسی کی وجہ سے کر سکتا ہے. فیملی کے کسی اور بندے سے, کسی اور ریلیٹو سے, پیرنٹس سے اگر کسی بات میں انبن ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسٹرانگ سائن. یہاں پہ یہ ہے کہ آج کل ہر چھوٹی بات پہ لوگوں کو آپشن یہی سمجھ میں آتا ہے, سوسائڈ از اے الٹیمیٹ آپشن, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری کوپنگ کیسی ہے, ہمارا چائلڈہڈ کیسا گزرا ہے. چائلڈہڈ میں فیملی ڈس فنکشنل تو نہیں تھی, پیرنٹس کے بیچ میں تناؤ تو نہیں تھا, پیرنٹس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا تو نہیں تھا. ہماری سراؤنڈنگ بچپن کی کیسی تھی, بچپن میں جو ہے کسی میل فنکشن کا شکار تو نہیں ہوئے, کسی مولسٹیشن کا شکار تو نہیں ہوئے. خاص طور پہ ینگ جو میل بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کسی بڑے بچوں نے تو نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں جا کے یہ اس ہم جو چیز کرتے ہیں ہمارے اندر بیٹھ جاتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں, تو وہ اندر ایک خوف, ایک ایسی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ آگے جا کے کسی نہ کسی ایسی سائیکیٹرک النس کا یا کسی کا شکل اختیار کر لیتی ہے. یا مور کامن ہوموسیکسول جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ کامن ہے سوسائڈل ٹینڈنسی کے. تو یہ اور میل جینڈر, فیمیل سے میل جینڈر میں سوسائڈل ٹینڈنسی, کیونکہ وہ بائی نیچر مور ایگریسو ہوتے ہیں. فیمیل کٹ زیادہ دیتی ہیں, اٹیمپ زیادہ کرتی ہیں, لیکن سکسیسفل اٹیمپ میل میں زیادہ ہوتا ہے. تو بیک ٹو یو. صحیح, بہترین. خواتین کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ وہ زیادہ تر اٹینشن پانے کے لیے اس طرح کی کرتی ہیں. آئی تھنک کہ لوگ کا ٹریک ہو جائیں یا ان کے ہسبینڈ یا فیملی اگر انہیں نہیں توجہ دے رہی ہے تو وہ ان کی طرف راغب ہو جائے اور معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہے. ایک یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. سر میں آپ کی بات پر آؤں گی کہ جو چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں وہ ہمارے لاشعور میں انکانشیس میں جا کے سیو ہو جاتی ہیں, جسے ہمارا مائنڈ جو ہے اسٹور ہے, اور پھر وہ گاہے بگاہے آپ کو ستا رہی ہوتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, آپ جانتے بھی نہیں ہیں, اور وہ پھر آپ کو آ کے تنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, اور وہ پرابلمس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. بچپن بہت اچھا ہونا چاہیے بچوں کا. یہ سب سے بہترین حل ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے کہ پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ پیرنٹنگ کس طرح سے کرنی ہے, اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہمیں سہولیات دینی ہے, ان کو کون کون سی ان کی نیڈس ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے. بہترین. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا بچوں میں بھی ٹینشن, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ کیا پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس, بچے بھی؟ بہت بہت شکریہ. چھوٹے بچوں میں جو اٹینشن کی وجہ سے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر بچپن میں اگر فیملی میں ہوتے ہیں, ایک بچہ ہے وہ 3-4 سال کا ہو گیا, دوسرا بیبی فیملی میں آ گیا, تو فیملی کی پوری جو توجہ ہے وہ چھوٹے بچے پہ ہوتی ہے. تو وہ بچے اگر فیملی جیسے آپ نے پیرنٹنگ کا نام دیا وہ دونوں کو بیلنس نہیں کر پاتی ہیں, تو پھر وہ بچے جو ہے نا اس چیز میں چلے جاتے ہیں, اٹینشن
सीकिंग में, जैसे फीमेल का बोला तो ये भी पर्सनालिटी टाइप से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में, हिस्टोनिक पर्सनालिटी जैसे हम कहते हैं, तो जिसमें वो चाहती हैं किसी तरीके से हमें अटेंशन मिले। बच्चों का जैसे आपने पूछा, तो बच्चों में बिल्कुल डिप्रेशन तो होता है, लेकिन बच्चों में बिल्कुल ही छोटे बच्चों में, स्कूल एज बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। छोटी उम्र में स्कूल में, तो स्कूल में भी मतलब कि ड्यूरिंग क्लास में क्लास के दौरान ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे टिक नहीं पाते, बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका IQ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये कॉमन है स्कूल एज बच्चों में। उसके बाद जो है ऑटिज्म की बीमारी है, वो भी ADHD से रिलेटेड ही है, वो भी बहुत कॉमन है। डिप्रेशन बिल्कुल बच्चों में होता है, ये ADHD बचपन वाला आगे जाके डिप्रेशन और दूसरी चीजें करती हैं, लेकिन बच्चों में डिप्रेशन होती है, लेकिन उस एज में, स्कूल एज में हम ADHD कहेंगे, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इनको जो डिप्रेशन वगैरह है, आगे जाके वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो मेरे पास बच्चे तो कम ही आते हैं, अडल्ट ही ज्यादा आते हैं। स्पीच साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब हमारे यहाँ बड़ों की भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो बच्चों की कहाँ होगी। बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे एक जगह पे बैठ नहीं रहे हैं, तो हम ये के जैसे बड़ों को कहते हैं इसकी आदत है, इसकी तबीयत है छोड़ है, इसकी नेचर ऐसी है, इसका मिजाज ऐसा है छोड़ है, तो ये है के छोड़ देते हैं। अगर बड़ों को भी अवेयरनेस नहीं है, तो फैमिली, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कराची में, मुझे पता है वहाँ लियाकत नेशनल से मैंने ट्रेनिंग की है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वहां पे आते थे। यहाँ पे बच्चों का मतलब मुझे लगता है कि अगर 1000 में से एक फैमिली आ जाती है, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने बच्चे को हाइपर एक्टिव देख के, उसकी हाइपर एक्टिविटी देख के अगर वो कंसर्न है, तो ये बड़ी बात है, मैं मानूंगा ये भी कामयाब। जी, बैक टू यू। अच्छा, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अलार्मिंग साइन है, अगर एक बंदे ने पहले खुदकशी की है, वो दोबारा कर सकता है, तो आप उसको जितना हो सके कि ऐसे बंदों को जेंटली, एम्पैथिकली, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, और उनको ये नहीं बताएं कि आप उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जताएं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे बंदे बड़े हसास होते हैं कि अगर हमारे साथ कोई हमदर्दी करना चाह रहा है, फिर वो उनके साथ चीजें शेयर भी नहीं करें। तो जितना हो सके उनको सुने, क्रिटिसाइज ना करें, जज ना करें, और जब अच्छा मौका मिले तो उनको लेके जाएं या उनके साथ चले जाएं किसी कंसल्टेंट के पास, किसी माहिर इमराज के नफ्सियात के पास, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। सर, जैसे आपने कहा कि एक अगर बंदा करने की कोशिश करता है खुदकुशी, तो वो दोबारा भी कर सकता है, ये साइन होता है। अगर प्रॉपर तौर पर उसको तवज्जो ना दी जाए और उसको ना लेकर जाया जाए, तो वो मे भी दोबारा कोशिश करेगा। लेकिन आजकल का जो दौर, मैं आपको बात करना चाहूंगी सर, कि लोग इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो उस ऐसे बंदे को या अपने भाई या बहन या अपने बच्चे को इतनी ज्यादा तवज्जो देना, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना होता है कि लोग इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं सुसाइडल के पेशेंट पे। और दूसरी बात ये कि वो जो सुसाइड कर चुका है, उसे पता है कि मैं सुसाइड कर चुका हूँ, तो ये बंदा मेरे से इतनी ज्यादा हमदर्दी कर रहा है, मेरे से मालूम करना चाहता है, मेरे साथ साथ रहता है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि एक तो तवज्जो नहीं दे पाते लोग खास तौर पे, और अगर जहां भी लैकिंग होगी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे ही उस बंदे को छोड़ा जाएगा, तो वो सुसाइड अगेन करेगा। इस बारे में बताएं, इसको रोका किस तरीके से जाए, बांध दिया जाए या फिर किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें,
खुदकशी क्यों की थी उसकी पहली बार अगर हम किसी साइकाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो वो हमें उसकी डिग आउट करता है काज ऑफ उसने क्यों किया, इसने सुसाइड क्यों किया, उसकी क्या वजह है। अगर फैमिली उससे बातचीत नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर सकती, एटलीस्ट किसी जो है नियर डॉक्टर के पास चले जाएं, चलो साइकाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंचते हो। क्योंकि किसी ऐसे स्पेशल बंदे के पास आप पहुंचोगे, एक्सपर्ट के पास पहुंचोगे, वो उसको काउंटर करेगा। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम ही साइकोलॉजिस्ट का काम ये वो तो देंगे, देंगे उस तरीके से चलाएं। जब डाउट करते हैं कास्ट के, जब करते हैं कास्ट के, तो कास्ट पे पता चलता है कि उसने नशे की वजह से किया है, उसने किसी की वजह से aim किया था, उसने ज्यादा इसके वजह से suicide किया था, ये उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज है। तो तरीके से डिफरेंस मेंटल ट्रीटमेंट का भी सब लोगों के लिए कि अगर घर पे टाइम नहीं है, घर के पास कितने करते सारे जैसे एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे सन बंदे भी हैं, एक्सपीरियंस बंदे भी हैं, उनके पास टिकट है, जाते हैं, उनको ना छोड़ें, उन्हें एक्टिविटी में एंगेज रखें। तो वो जब तक खाली होंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जब वो इंगेज होंगे तो कहते हैं कि खाली दिमाग में शैतान आ जाता है, तो वो शैतान नहीं आएगा। बिजी होंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर करेंगे, क्रिएटिव जरूर करेंगे। रही बात एक्सपर्ट के पास, जब आप जाओगे वो काज डिग आउट करके उसके ट्रीटमेंट प्लस थेरापी स्टार्ट कर देगा। सपोज डिप्रेशन की वजह से कोई अटेम्प्ट कर रहा है, हमने डिग आउट कर लिया काज, वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर देगा, साथ में काउंसलिंग के लिए सीबीटी थेरेपी भी चला देगा, जिसमें उसका सेशन होगा हर वीक पे या एवरी 15 डेज पे। वहां जाके वो अपनी बातें शेयर करेगा साइकोलॉजिस्ट के पास के, वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज देगी साइकोलॉजिस्ट कि इस वीक आपने ये करना है, इस वीक ये करना है, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसी में मशगूल रहेंगे। वरना उनको हम छोड़ देंगे विदाउट प्रॉपर मेडिकल हेल्प या साइकेट्रिक हेल्प, तो फिर हम नहीं उनको बचा पाएंगे। हमने हेल्प तो देनी ही देनी है। हमने कह दिया कि इसकी तबीयत ऐसी है, छोड़ दो, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसने खुदकशी की है डिप्रेशन की वजह से, वो खुद को ही हार्म कर सकता है, वो दूसरे को भी हार्म कर सकता है, फैमिली में किसी मेंबर को भी हार्म कर सकता है, क्योंकि वो इतने कभी कभार डिप्रेशन और मैनिक फेज के जो बंदे होते हैं वो फैमिली के लिए इतने हार्मफुल होते हैं, इतने अब्यूजिव हो जाते हैं, तो और ऐसा कि हाथ भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये चीजें हमने ये नहीं देखना है कि हम खाली उसको बचा रहे हैं, हमने हम फैमिली को बचाना है। और सबसे ज्यादा हमारे ऊपर क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर कि एक बच्चे को इलाज भी नहीं करवा रहे, तो ये सारी चीजें देखनी होती है आपने। मतलब कुछ भी हो जाए, प्रॉपर मेडिकल हेल्प सीख करनी ही करनी है, वो तो लाजमी है। आप टाइम नहीं दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, फैमिली मेंबर नहीं दे सकते, तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। साइकेट्रिक पेशेंट के साथ फैमिली की जरूरत ही नहीं है, बस आप 2 घंटे जाएं, मिल के आए दिन में, बाकी सारी चीजें हॉस्पिटल खुद ही मैनेज कर लेगी। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग के लिए, आपको फैमिलीज को बताने के लिए आगे इनको क्या करना है। जैसे नशावर बंदा होता है, तो चलो रिहेबिलिटेशन से बाहर तो निकला, बाहर जब निकलेगा सिगरेट का धुआं कहीं देखेगा, वहां जाके सिगरेट दोबारा शुरू कर देगा। तो वो जो पीयर हैं, वो जो उसके दोस्त हैं, वो जो फ्रेंड सर्कल है, वो जो शॉप है जहाँ पे वो जाता था, तो वो सारी चीजें ये हमने साइकोथेरेपी में सब चीजें, सब टेक्निक बतानी होती है, समझानी होती
तो यही है कि अगर हम नहीं कर सकते तो प्रॉपर सेंटर होते हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल होते हैं, हेल्प लें उनकी, हम इनको कर सकते हैं। फैमिली में अगर पढ़ी लिखी फैमिली है, उनको पता है, ऐसा नहीं कि अगर एक साइकेट्रिक पेशेंट है तो काउंसलिंग उस बच्चे की होती है, फैमिली की भी होती है, उनके साथ कैसे डील किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने बच्चों के बारे में पूछा, तो ADHD कॉमन होती है। तो ADHD में तो बच्चा तो छोटा है, उसको तो हम क्या बताएंगे, पर उसको कैसे हैंडल करना है, हाउ टू टेकल हिम, एक स्कूल टीचर को काउंसिल करना है, दूसरी उसकी फैमिली को करना। तो उसी तरीके से इन जो खुदकशी के मोर प्रोन पेशेंट है, अलार्मिंग साइन जो है, उसके लिए फैमिली को भी एजुकेट करना पड़ता है, फैमिली को भी काउंसिल करना पड़ता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फैमिली को एक चीज जरूर से बताई जाती है कि आप आर्ग्यू ना करें इनसे, बात सुन लें, समझ में आए ठीक है, लेकिन आर्ग्यू ना करें। और बाकी काम तो वैसे ही जो जिससे प्रॉपर मेडिकल हेल्प लेते हैं हम, वो उनको डिफरेंट टास्क देते हैं, बस आप ये करना है कि उनको मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर डिप्रेशन में जो बंदे आ जाते हैं, वो कमरे से बाहर नहीं निकलते, वो उनको तन्हाई चाहिए, मतलब कि वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ज्यादा हम उन पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे यहीं रहना है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या है, हमें सपोर्ट करनी है, मोटिवेट करना है। उनसे बातें जरूरी नहीं है वो ये चाहते हैं कि मेरे साथ ही कोई हो, पर ये है कि उनको ये जरूर होता है कि कोई हो जिससे मैं बात करूं, इतना जरूर फील होता है। क्या मैं आसान अल्फाजों में हमारे उर्दू में बोलूं तो एहसास से कमतरी के वो शिकार हो चुके होते हैं। तो फैमिली सपोर्ट ही उनके लिए सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैक टू यू। बेहतरीन सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया हमें कि किस तरीके से हम जो है रोक सकते हैं या कम से कम कर सकते हैं ऐसे लोगों को, किस तरीके से हैंडल करना है या फिर लेके जाना है। फिर वही बात आ जाती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और कि हम अगर ये बंदा इस तरह कर रहा है तो वो यही सोचते हैं कि ये इसकी बात नहीं मानी है हमने, तो इसने इस तरह किया है। तो वो ये अवेयरनेस नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ले जाएं, इनको सिखाएं, इनको बताएं, या वो ज्यादा बेहतर तरीके से इनको समझा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त किस डॉक्टर की जरूरत है, और हमें आगाही जरूरी है कि लोगों को पता हो और वो जाएं और अपने मसले मसाइल का हल जो है निकलवा सकें या खुद निकाल सकें। बेहतरीन सर, मैं आपसे इंटरव्यूज के बारे में भी जानना चाहूंगी। आप इंटरव्यूज भी कलेक्ट करते हैं, तो सर उसका जो मकसद है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यूज मैंने अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ वापसी करने के लिए। मुझे तकरीबन 11 महीने हो गए मैंने छोड़े हुए। बीच में लाइव सेशन कर लेता हूँ। मैंने तकरीबन 358 इंटरव्यू किए थे, तकरीबन 6 मंथ के अंदर। फिर जॉब की मसरूफियात की वजह से, आपको पता है इंटरव्यूज के लिए हमने डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, फिर उनके कंट्री वाइज जो है हमने टाइम का स्केड्यूल करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो कंपैरिजन उसके मुझे लाइव सेशन थोड़ा इजी लग रहा था, तो मैं वो ज्यादा कर रहा था। लेकिन मैंने 358 किए हुए हैं। आप मेरे फेसबुक वॉल पे नीचे जैसे जाओगे 1 ईयर बैक पे, तो आपको सारे वो मेरे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। क्यों मैंने शुरू किया, मेरा एक पेशेंट था बचपन से कि मुझे बोलना है, मुझे स्टेज पे आना है, मुझे होस्टिंग करनी है। तो बचपन में कम मौके मिले। यूनिवर्सिटी में तो अच्छा उसका मतलब फायदा उठाया, लेकिन जो मिलता है बचपन में वो चीज। लेकिन कोविड वाला जो पीरियड था ना, उसने वो मौका दे दिया। थैंक टू स्ट्रीम यार्ड, थैंक टू रेहान अलावाला, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया, तो मैं मतलब डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर सका। और अच्छी बात है कि मैं आज भी उन 358 लोगों से कनेक्टेड थ्रू फेसबुक मैसेंजर। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है क्योंकि ये एक नया रिलेशन, जिसमें 92 इंटरव्यूज मैंने फॉरेनर के लिए हैं।
आउट ऑफ 358। तो कहते हैं कि 3% ही दुनिया पाकिस्तान में है, 97% दुनिया जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर मैं बाहर नहीं जा सका तो बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके कंट्रीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ क्या अच्छा है, क्या चीजें अट्रैक्शन के लिए हैं, क्या क्या घूमने की प्लेसेस हैं, क्या कल्चर है। जैसे हम यहाँ ईद, दिवाली, होली सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ वो क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, मजा भी आया एजुकेशन के वाइज से, लर्निंग की वाइज से, तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मोर इम्पोर्टेंटली मैंने सुनना सीखा जो मैं सुन नहीं सकता था। नो डाउट कि मेरी फील्ड भी उससे रिलेटेड है, तो सुन तो लेता हूँ, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल में सुन लेता हूँ, बाहर आता हूँ तो फिर नहीं सुनता हूँ। लेकिन इंटरव्यूज में फिर वो मेरी क्या कहते हैं कि लिसनिंग स्किल को और बेहतर किया और निखारा। तो कहते हैं कि इंटरव्यूज से आपको कनेक्ट टू वर्ल्ड, दुनिया से कनेक्ट हुए, एक्सप्लोर टू वर्ल्ड, दुनिया को एक्सप्लोर किया, दुनिया से मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ पर्सनालिटी के साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीजें पता चली दुनिया के लोगों के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट माहौल के बारे में, और लिसनिंग स्किल और बेहतर हुआ। तो मेरी यही है कि मैंने ये चीजें सीखी। बैक टू यू। माशाल्लाह से सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और हमारी जो कम्युनिकेशन की स्किल है उसमें बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो ऐड होते रहते हैं, और आपकी जो स्किल है वो ज़बरदस्त, बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। बहुत अच्छा सर, मैंने कुछ ही इंटरव्यूज देखे हैं आपके, मैं और पूरे देखूंगी कि आपने किस किस टॉपिक पे बात की है और किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस दी है। माशाल्लाह से सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? नाजरीन शायद सर का डिस्कनेक्ट हो गया, हम इंतजार करते हैं। हेलो हेलो। जी जी सर। जी थैंक यू। सॉरी। कोई हेलो। बात नहीं सर। जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी जी, आप क्या पूछ रही थी? सर, मैं आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव जानना चाहती थी कि आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से मैं सर्व टू पीपल, मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव वो मैं कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ। फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मेडिकली हो, फिजिकली हो, जहाँ होता है मैं सर्व टू पीपल, सर्व टू ह्यूमनिटी। जैसे मेरे प्लेटफॉर्म का मकसद भी यही है, स्प्रेड लव, पीस, काइंडनेस एंड इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ लव एंड काइंडनेस। तो वो मैं कर रहा हूँ, यही है मेरा मकसद। जी बैक टू यू। बेहतरीन, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ऐसे ही लोगों की खिदमत करने के लिए और लोगों को आगाही देने के लिए आपको आगे रखें इंशाल्लाह। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? देखिए, ख्वाहिश हर स्टेज पे बदलती है। मकसद, अगर मैं कहता ना कि पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए आप जिस स्टेज पे भी जाओगे न, तो आपने और कमाने हैं। या मैं और कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप जिस स्टेज पे भी जाओगे ना, आपकी ख्वाहिश या मकसद एक नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमने एक टारगेट अचीव कर लिया ना, फिर हम बैठ नहीं सकते, हमने और करना है, फिर और करना है, फिर और करना है, क्योंकि ये हमारी फितरत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नो डाउट अपने ख्वाहिशात और मकसद बहुत ही लिमिटेड रखे हैं, क्योंकि जो मैंने चाहा वो मुझे, क्या कहते हैं, ऊपर वाले ने मुझे सब
दे रहा है और देता रहेगा। ठीक है, तो ख्वाहिशात में सिंपल है कि मैंने यही रखा था कि मैं इस मकाम पे पहुंचूं जिससे मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 2 लोगों की मदद कर सकूं। तो मेरे ख्याल से मेरा ख्वाहिशात बोलो, मकसद बोलो, वो आप समझ लो कि पूरा है, आगे भी होता रहेगा, वो मैं कर रहा हूँ। ख्वाहिशात मतलब अब ये है कि 2 की जगह पे मैं 2000 लोगों की मदद कर सकूं, 2 लाख लोगों की मदद कर सकूं। इसको जितना बढ़ाएं उतना थोड़ा है, लेकिन अल्टीमेट मेरा गोल क्लियर है, मेरा मकसद क्लियर है। मेरा मतलब कि मेरा मकसद है खिदमत करना। वो डॉक्टर बन के मेरा मतलब जब मैं हेल्थ में आया और डॉक्टर बना, मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा ही इसलिए, तो खुद लोगों की सर्विस कर, लोगों की खिदमत कर। तो मेरा मकसद, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आते हो ना हेल्थ में, तो आपका मकसद यही होना चाहिए। चलो बाकी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उसमें इंसान इतना अंधा ना हो जाए कि खिदमत भूल जाए। पहला मकसद तो खिदमत ही है ना, बाकी ज़िंदगी है, दुनिया है, दुनियादारी है, वो सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन उस चक्करों में इतना ना भूल जाए कि हमने खिदमत करनी थी, वो तो हम भूल ही के बाकी सब कुछ पा लिया। तो मेरा मकसद क्लियर है, मैं खिदमत कर रहा हूँ। बहुत बैक टू यू। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन सर। बिल्कुल सही बात है। आपका विजन, आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप उस पे चल सकें, और तो सारी ख्वाहिशें और आपके मकासद भी वो कंप्लीट होते चले जाते हैं। और मेहनत लाजमी है, आपको मेहनत करते रहना है आगे बढ़ने के लिए। सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर ये मौका दिया जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ शेयर कर सकूँ। मेरा मकसद और आज के इस शो पे यही था कि ये सितंबर का महीना है, 10 सितंबर सुसाइडल प्रिवेंशन, वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे है। और सुसाइड, जैसे मैंने पहले बताया, सुसाइड या खुदकशी जो है बढ़ता हुआ आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो उसकी प्रिवेंशन, उसकी आगाही के मुतालिक कुछ ना कुछ बताऊं। तो मेरा ये इंटरव्यू यही है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करूं। आप अपने अड़ोस पड़ोस, आसपास, अपने फैमिली रिलेटिव, कहीं भी कोई भी बंदा ऐसा देखो जो नाउमीदी की बातें करता हो, मायूसी की बातें करता हो, जिंदगी से बेजार होने की बातें करता हो, या ऐसे लोगों को आप प्यार से बात करें, ऐसे लोगों को आप सुने, ऐसे लोगों को आप क्रिटिसाइज ना करें, ऐसे लोगों को जज ना करें। जितना हो सके, वो जितना जल्दी हो सके प्रॉपर साइकेट्रिक हेल्प के लिए लेके जाएं। ये एक बंदे की आप हेल्प करोगे मतलब आपने इंसान जात की मदद करी। बाकी खुद पे भरोसा करें। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, नादिया मैडम कुछ कर सकती है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सारा हमें टाइम दिया और इतनी सारी हमें आगाही दी खुदकुशी के मुतालिक, और बहुत सारे डिसऑर्डर हमें बताए, उनके सिम्टम्स भी बताए और किस तरीके से उन पे काबू पाया जा सकता है, किस किस वक्त हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये सारी बातें हमने आपसे जानी। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली आपसे। बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय, और ये साइकेट्रिस्ट हैं। उम्मीद है आज के हमारे पॉडकास्ट से, आज के हमारे इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा। इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।